Hello students, good morning. How are you all? I'm fine. So student, today we are learn for chapter number 21. Let's save water. So first of all open your textbook for subject environment. Page number 144. 144. ओपन इट. देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है. बहुत सारी विमेंस यानी आंटीज़ है वो अपने घड़े लेके यहाँ पे पानी भरने के लिए आ रही है. लेट्स सेव वाटर. ओके. सो आज हम लोग ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिंगर रेज ऑफ फर्स्ट लाइन. This is a story of Rajasthan. The name of village is Bajalpur. Madhu is living in this small village. Here the village is hardly visible. Only sand dunes can be seen. Only when there is no sandstorm, few houses are visible. In summer there is water scarcity in his place. This year it is worse. There is no rainfall in this area. His mother and sister have to walk a longer distance to fetch water as the nearby pond has also died. Each day they spend hours just to get 4 pots of water. While walking on the hot sand, their feet burn and blisters just cannot be avoided. Now next page, page number 145. Water is sent to this place. A train carries water to the village. Seeing these villagers feel very happy. Madhu's father takes his camel cart to fetch water. However, this does not happen often. People keep on waiting for days together for water. Some people collect rainwater. This is done by a special method. Collect rainwater harvesting by making tanks, yani tanka. Do you know what a tanka is and how is it built? To build a tank, a deep pit is dug. This tanka is made pakka with cement. The tank is covered by a lip. Here the houses are made with slanting roofs. This way the rainwater is stored. The rainwater collected passes through a pipe in the tanka. A serve is attached at the mouth of the pipe so that no dirt goes into the tank. This water is used for drinking after it is cleaned. Now turn your page. Page number 146. Just like Madhu, Saroj also faces water scarcity in her house. She lives in Ramnagar. Water is supplied only for half an hour in a day. All the pipe of the area depend only on a single tap. Can you imagine what happens? उसके नीचे देखो, what are the difficulties faces without water. आपको पानी की वजह से कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ यानी क्या बोलते हैं उसको, कौन कौन सी मुश्किलें यानी प्रॉब्लम्स होती है वो आपको यहाँ पे 4 लिखनी है. सरोज इज़ डिटरमिनेड to take water from the tap. Whenever she gets a chance, she fills her bucket, even if it is just drop by drop.
हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल। देखो ये 4 पिक्चर्स आपको दिए हैं, वो उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। देखो स्पून में ड्रॉप्स डालते हुए वो पिक्चर दिखा है, उसके नीचे लिखना है हाउ मैनी ड्रॉप्स विल फिल अ स्पून। कितने ड्रॉप्स में चम्मच भर जाती है, वो आपको आपके घर पे ट्राई करके आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। सेकंड पिक्चर है हाउ मैनी स्पून्स विल फिल अ बाउल। एक बाउल लेना है और उसको स्पून से ही बाउल भरना है, और कितनी स्पून की पानी कितने स्पून जाता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी बाउल्स विल फिल अ मग। जो बाउल आपने चम्मच से भरा वो ही बाउल को लेके छोटा सा जग यानी डिब्बा हम लोग नहाने के लिए यूज़ करते हैं वो भरना है, लेकिन उसी बाउल से। वो बाउल कितने बाउल भर के पानी उस जग में जाता है वो आपको लिखना है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मेनी मग्स विल फिल अ बकेट। एक बकेट यानी डोल लेनी है और डोल को उसी मग जिससे हमने बाउल भरा था, बाउल से जो मग भरा था वही मग से उपयोग करके वो बकेट फिर भरनी है, लेकिन कितने मग वो बकेट में आता है वो आपको यहाँ पे काउंट करके लिखना है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 147। ये जो पूरा पेज है वो आपको अपने हिसाब से करना है। ड्रॉप हाउ मच वाटर वोल्ड बी वेस्टेड। यहाँ पे जस्ट थिंक इफ अ टैप लीक्स इवन अ ड्रॉप्स हाउ मच वाटर वोल्ड बी वेस्टेज। उसके नीचे है थिंक एंड राइट। कैन यू थिंक द वेज ऑफ सेविंग वाटर, राइट योर सजेशन बिलो। हम लोग कैसे पानी सेव कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे 6 जो दिए गए हैं बॉक्सेस उसमें आपको सजेशन लिखना है। राइट द नेम्स ऑफ प्लेसेस वेयर यू हैव सीन वाटर फॉलोइंग अनसेसरिंग। वो आपको यहाँ पे आपके हिसाब से लिखना है 4। ओके, टर्न योर पेज, पेज नंबर 148। Look at the picture given below. Can we reuse water which we have used in one work of other work? Discuss. देखो यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में एक लेडी है, वो 2 घड़े पानी के भर के आ रहे हैं। सेकंड पिक्चर में वो खटिया पे के ऊपर बैठ के उसके खटिया के नीचे एक तपेला रखा हुआ है और वो एक मटके से वो नहा रही है, लेकिन नहा रही ऐसे रही है कि जैसे सब पानी वो बकेट में जमा कर रही है। थर्ड पिक्चर में जिस पानी से उसने नहाया था उसी पानी से वो अपने एनिमल यानी काऊ को नहला रही है, इसलिए उसका पानी भी वेस्ट नहीं हुआ और एक बकेट पानी से उसने दोनों काम कर लिए। उसके नीचे है ड्रॉ लाइन्स यूजिंग डिफरेंट कलर्स ऑफ शो विथ वर्क विल बी डन आफ्टर द अदर सो दैट द सम वाटर कैन बी रीयूज्ड। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन। एग्जाम्पल दिया हुआ है, रेड लाइन खींची हुई है। वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वाटरिंग प्लांट्स। ओके, वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल धो के जो पानी बचता है वो हम लोग पानी प्लांट्स में डाल देते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, थोड़े से पानी से 2 काम हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरह से देखो फर्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है वॉशिंग हैंड्स एंड फेस, वॉशिंग क्लॉथ्स यूज। उसके नीचे लिखा हुआ है मॉपिंग द फ्लोर, वाटरिंग द प्लांट एंड यूजिंग इन द टॉयलेट। वो आपको मैच करना है, मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे फिल करके ही दिया है। ठीक है। सो आज का आपका होमवर्क है, जो जो मैंने आपको टेक्स्ट बुक में लिखने के लिए बोला है वो आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके एक्सरसाइज करेंगे, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ।
Bye.